یسوع مسیح ناصری کے مبارک نام میں فتحمند نام میں تمام مقدسین کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. آمین. آج ہم بائبل مقدس میں سے زبور 138 میں سے سیکھیں گے. زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 138 میں سے آج ہم سیکھیں گے. سارے کلام کی طرف رجوع کریں گے اور بڑے ہم دل جوئی کے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے. اور آج کے زبور میں سے ہم صرف پہلی 2 ورسز کو ہم دیکھیں گے. اگر کوئی حوالہ بچے آپ نکال لیں تو آپ پڑھیں زبور 138 اس کی پہلی 2 ورسز کی ہم تلاوت کو سنیں گے. سارے غور سے سنیں گے. میں پورے دل سے تیری شکر کروں گا. آمین. معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. یس. میں تیرے مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. ہاللویہ. تھینک یو سسٹر جی. گاڈ بلیس یو. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. یہ زبور پاک روح کی رہنمائی سے داؤد خدا کا بندہ لکھتا ہے اور اس زبور کا آغاز خدا کا بندہ یوں کرتے ہیں کہ میں پورے دل سے لکھا ہے میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ پورے دل سے شکر گزاری نہیں کرتے. وہ شکر گزاری صرف شاید ہونٹوں سے کرتی ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ یار یہ شخص تو بہت روحانی ہے، یہ شخص بات بات میں شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن وہ دل سے شکر گزاری نہیں کرتے، ہونٹوں کی حد تک رہتے ہیں. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بات بات میں کہیں گے خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے، لیکن ان کے اندر اتنا ہی زیادہ غصہ اور چڑچڑاپن بھی پایا جاتا ہے. محبت مسیح کی ان کے اندر نظر نہیں آتی. لیکن جو شخص دل سے شکر گزاری کرتا ہے، بیسیکلی شکر گزاری انسان کو حلیم بناتی ہے. شکر گزاری ہماری زندگیوں میں جب آتی ہے تو ہمیں حلیم ہمبل بناتی ہے. ہماری زندگیوں سے چڑچڑا پن جاتا رہتا ہے، غصے کی اسپرٹ جاتی رہتی ہے، نفرت کی اسپرٹ جاتی رہتی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی ہارٹ سے دل سے پورے دل سے شکر گزاری کرتے ہیں. اور داؤد بادشاہ بھی خدا سے یوں کہتے ہیں کہ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا. بار بار ان ورسز کے اندر داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میں تیرا شکر کروں گا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سیکھا تھا کہ شکر گزاری جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں پیدا کرتی ہے. شکر گزاری سے ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور پورے دل سے شکر گزاری کرنے سے ہمارا ہارٹ، ہمارا جو دل ہے یہ خدا کی پریزنس سے بھر جاتا ہے، خدا کی موجودگی سے بھر جاتا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے بچے پورے دل سے شکر گزاری نہیں کر سکتے. چھوٹے بچے بھی جب دل سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ان کے ہارٹ کے اندر بھی مسیحا آ جاتا ہے. یسوع مسیح ناصری ان کی زندگی میں آ کر کام کرتے ہیں. یہ کہ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. اور بائبل مقدس میں یہ سکھاتی ہے، اگر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب آپ پڑھیں تو اس میں لکھے ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی کلام نے جسم لیا. اور کلام ہی تو یسوع ہے جس نے جسم لیا اور ہمارے درمیان یسوع بادشاہ آئے جسم لے کر، کلام کلبہ مجسم ہوا. بائبل مقدس ہمیں یہ بڑی ڈیٹیل سے اس تعلق سے بتاتی ہے. اور یہاں پر داؤد بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ تو نے اپنے کلام کو یعنی یسوع بادشاہ کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. خدا اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. خدا نے ہر جگہ پر بیٹے کو عزت دی. خدا نے بیٹے کو سربلند کیا، اس سے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ تھا. یہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے. تو اگر خدا
बाप बेटे को इतनी इज्जत देता है, तो हम क्यों यीशु बादशाह की इज्जत नहीं देते? अगर कभी आप गौर करें कि बदरूही स्पिरिट्स, रात को भी हम सीख रहे थे कि जो बैड स्पिरिट्स हैं ये इंसान की दुश्मन है, इंसान की बॉडी को नोच लेती है, इंसान की स्पिरिट को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन यीशु के नाम से ये तासीरें, ये बदरूहें, तारीकी कुर्ते हमारी जिंदगियों से भागती हैं। आप बाइबल मुकद्दस की में बेशुमार अंबिया ज़ादे हैं, बेशुमार नबियों का जिक्र है और बेशुमार रसूलों का जिक्र है। बड़े मुकद्दस वो खुदा के बंदे थे। आप उनका नाम लेंगे, बड़े बोझ से लेंगे, दिल से लेंगे, तो भी इब्लीस नहीं जाएगा, उनके नाम से इब्लीस नहीं भागेगा, क्योंकि यीशु मसीह नासरी को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। इस आला नाम से इब्लीस भागता है। इसलिए अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सुना कि लिखा है, क्योंकि तूने अपने कलाम को यानी यीशु को अपने हर एक नाम से, आपको पता है यहोवा खुदा के बेशुमार नाम है। यहोवा भी हम बोलते हैं, आसमानी बाप भी बोलते हैं, और भी यहोवा राफा भी हम बोलते हैं। मुख्तलिफ यहोवा खुदा के आसमानी बाप के पाक नाम है मुख्तलिफ, और वो बाबरकत नाम है। और यकीन जाने मैंने ये तजुर्बा किया बाजी, ये बड़ी सीखने वाली बात है। यहोवा कितना बड़ा नाम है। और हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि जो यहूदी लोग हैं वो जिस पेन के साथ यहोवा लिख देते हैं बाद में वो यूज़ ही नहीं करते। वो कहते नहीं, इस पेन के साथ बादशाहों के बादशाह हमारे आसमानी खुदा का नाम लिखा गया है, अब ये दूसरे कामों के लिए यूज़ नहीं होगी, ये पेंसिल पाक होगी। लेकिन आप यहोवा नाम भी लेंगे तो इब्लीस नहीं भागेगा। हैरानगी वाली बात है ना। बाप का नाम पाक है, यहोवा पाक खुदा। जब हम यहोवा बोलते हैं तो हमारा जो माउथ है, हमारा मुंह बरकतों से भर जाता है। लेकिन यहोवा नाम से भी इब्लीस नहीं भागता। इब्लीस की तस्वीरें सिर्फ यीशु नाम से भागती। इसीलिए दाऊद बादशाह पाक रूह की रहनुमाई से कहता है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। अपने कलाम को, और अभी हम सीख रहे हैं कलाम ही तो यीशु है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में लिखा है ना कि कलमा मुजस्सम हुआ, कलमे ने, कलाम ने जिस्म ले लिया, कलाम बेटा बनकर आ गया। और कलाम को यहोवा खुदा अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत देता है। इसलिए जो नाम बाप ने बेटे को दिया, उस नाम से बदरूही भागती हैं और फतह से बढ़कर इंसान को गलबा मिलता है। कभी आपने यीशु नाम लिया? जानते हैं यीशु कौन है? कौन कौन जानता है जीसस को? कौन है जीसस? जी बेटे, जीसस बेटी ने बोला ये खुदा बाप है। जी ब्रदर जी, जीसस कौन है? हमारा नजात है। जी बाजी, यीशु कौन है? आप भी मुतफिक है बेटी के साथ। हमारा नजात हिंदा, खुदा बाप बेटी ने बोला हमारा नजात हिंदा। जी बेटे, भाई रशीद आप बोलेंगे जीसस कौन है? बादशाहों का बादशाह, ये टाइटल्स है जीसस के। जी आकाश भाई, खुदावंद खुदा है, खुदा का बेटा। जी बाजी, मिसेस मंजूर आपको भी ऐड करते सबके साथ मुतफिक है। नहीं, आप अपनी राय भी दिए। खुदावंद का बेटा है। हालेलुया, खुदा का बेटा है। जी बच्चों में से और कोई बच्चा? जी बेटे, आप मेरे बेटा ये शब्द बड़ा एक्टिव, खुदा बाप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीसस को कभी भी हमने खुदा बाप नहीं बोलना, ठीक है? जैसे बाजी ने भी बोला खुदा का बेटा है। और जो जीसस को दर्जा दिया गया, बाइबल मुकद्दस हमें जो सिखाती है, बाप ने बेटे को दर्जा दिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूहन्ना इस्तबागी जब दरियाई यर्दन में जीसस को बपतिस्मा देती हैं तो उस वक्त फिर आसमानों से एक आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसका मतलब है जीसस जो है बेसिकली तस्लीस के ताल्लुक से किसी दिन हम सरमन को सुनेंगे, फिर हमें इस लॉजिक का समझ आ जाएगी। बाप, बेटा और रूह, पाक रूह, जिसे हॉली गॉस्ट बोलते हैं।
हॉली स्पिरिट बोलते हैं, एक ही है। जो बाप के अंदर खूबी है वही बेटे के अंदर है। और इसकी भाई कोई डेफिनेशन कर सकता है? बाप के अंदर जो खूबियां हैं वही बेटे के अंदर है। कोई मिसाल आपको याद हो, हम बाइबल सीख रहे हैं, कोई एग्जाम्पल आपको याद हो कि बाप के अंदर जो खूबियां हैं वही बेटे के अंदर खूबियां हैं। अगर द बुक ऑफ जेनेसिस को आप पढ़े तो उसमें लिखा है कि खुदा कहता है, जीसस से बाप कहते हैं, पाकुर से बाप कहते हैं कि आओ हम इंसान को बनाएं। तो बाप इंसान को मिट्टी से बनाता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। खुदा ने कहा आओ हम, उस वक्त तो इंसान कोई नहीं था, इसलिए जीसस बाप के अंदर था कलमे की सूरत में, और हॉली स्पिरिट जो पानी के ऊपर जुम्बश करता था। आसमानी बाप जीसस से और पाकुर से कह रहे हैं कि आओ हम इंसान को बनाएं, और फिर इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया। जब जीसस जमीनी खिदमत करते हैं तो एक शख्स था जो अंधा था, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जीसस ने मिट्टी ली। और मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था कि ये ख्वाल ही ख्वाल थे, उसकी आंखों के अंदर आई बॉल नहीं थी, जैसे हमारे जो ब्लैक ब्लैक बॉल पुतलियां नजर आती हैं ना, उस शख्स की आंखों में नहीं थी, वो खाली ख्वाल थे। इसीलिए तो फिर मिट्टी जीसस ने वहां पर भर दी है ना। अगर पहले ही पुतलियां होती तो मिट्टी कहाँ पर लगा दी थी? वो बेसिकली गैप थे, बड़े बड़े सुराख थे, खिड़कियों में बड़े बड़े सुराख थे। जीसस ने मिट्टी ली, सारे वाक्य को आप जानते हैं, और लिखा है कि जीसस ने आंखों के ऊपर लगा दी, और फिर उससे बोला कि जा इसे हौस में धो ले, शैलो के हौस में इसे वॉश कर ले। और बाइबल में लिखा है कि वो अंधा जो जन्म का अंधा था, जो पैदा ही ऐसे हुआ था, जिसकी पैदाइश से पहले ही से उसकी आंखें थी नहीं, लेकिन मिट्टी बेसिकली वहां पर भी जीसस यहूदियों को बताना चाह रहा है कि मैं ही वो खुदा हूँ जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया। जो बाप के अंदर खूबियां हैं वही मेरे अंदर खूबियां हैं। और यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील में जीसस ने कहा, जिसने मुझे देखा उसके बाप को। मैं और बाप एक है, हम एक ही हैं। जो खूबियां बाप के अंदर है वही खूबियां बेटे के अंदर है। बाप का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था, जीसस ने भी अपने शागिर्दों को पानियों के ऊपर चलकर दिखाया कि मैं और बाप एक है, मैं और बाप का रूह हम एक है। तो इस बात से हमें, इस लॉजिक से पता चलता है कि सारी खूबियां खसलतें जो यहोवा खुदा के अंदर हैं, तो वो सारी खूबियां बेटे के अंदर हैं, यीशु मसीह नासरी के अंदर हैं। लेकिन बदरूहें सिर्फ यीशु नाम से भागती हैं। आज हम ये सीख रहे हैं कि यहोवा कितना बाबरकत नाम है, बाहर से बरकत, लेकिन यहोवा नाम भी लेंगे तो इब्लीस नहीं भागेगा। क्यों? चूंकि बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 138, 138वां ये ज़बूर है, और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा के आखिरी हिस्सा में ये लिखा है, क्योंकि तूने अपने कलाम को, दाऊद बादशाह कह रहा है, खुदा से कह रहा है, क्योंकि तूने अपने कलाम को यानी अपने बेटे यीशु को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, जिसकी वजह से यीशु नाम से बदरूहें भागती हैं। जीसस के नाम से बदरूहें जो हैं वो बदनों को छोड़ देती हैं, फिजा के अंदर से दौड़ जाती हैं। और आगे भी मैं बता रहा था कि उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आता है। इसका मतलब है यहोवा नाम से भी ज्यादा ये आला नाम है। फजल के दौर में हमें बाइबल सिखाती है। कई दफा हम कश्मकश में पड़ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? बाप के नाम से बदरूहें नहीं भागती, क्योंकि बाप ने सारे इख्तियार ही बेटे को दे दिए। मैं एक बुक पढ़ रहा था D.L. मूडी की, मुसन्नफ मसीही खादम अपनी मसीही किताब में ये लिखते हैं कि बाप कुछ नहीं करता, खुदा आसमानी बाप यहोवा खुदा कुछ नहीं करता सिवाय इसके कि दुआओं के जवाब दे। बाकी सारे काम बेटा करता है, सारे इख्तियार। जब जीसस हमारे लिए यीशु ने अपनी जान का कफारा दिया, मर गए, फिर जी उठे, जी उठने के बाद जीसस ने इब्लीस से वो सारी कुंजियां, वो इख्तियार छीन लिए, और बाप ने फिर बेटे को सर बुलंद किया। अब बाप सिर्फ अपने पाक तख्त पर, आसमानों पर तख्त नशीन है, और बेटा शफायत करता है कि बाप तेरी बेटियां, तेरे बेटे जिन पर ये मेरा लहू लगा हुआ है, ये दुआ कर रहे हैं, मैं उनके लिए शफायत करता हूँ, उन पर रहम कर। बाप
बेटे की दुआ का, हमारी दुआओं का जवाब देता है। बाकी सारे काम जीसस करते हैं और ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। अगर लेटर्स को आप तफसील से पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। बाप का एक अपना रोब, अपना रुतबा है। बाप सिर्फ अपनी जगह पर, जिस तरह के दफा घर का सरबराह होता है ना, छोटे मोटे काम जो होते हैं वो सारे दूसरे मेंबर्स की ड्यूटी होती है, लेकिन कोई फैसला करना हो तो फिर बाप से पूछा जाता है। इसी तरह यहोवा बाप का शुरू से एक बड़ा स्टेटस था और है और हमेशा रहेगा। था नहीं स्टेटस, बल्कि हमेशा रहेगा। इसलिए बाप अपने तख्त पर बैठा हुआ है और आज हमने यीशु के नाम से इब्लीस को डांटा। ये बड़ा जरूरी है। जब आप जीसस के नाम से इब्लीस को डांटेंगे, इब्लीस जिंदगियों से जाएगा, आपकी सोच से जाएगा, आपके बदन से जाएगा। अभी जो आप बात कर रहे थे, ये सारी चीजें जिंदगी से निकलती जाएंगी और आपकी जिंदगी में पॉजिटिवपन आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती रहेगी। आइए सारे आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रेयर करेंगे।